Hello student, today we are going to start chapter number 6 part number 2. In previous video in part number 1 we have already read about this chapter. We have read about 1 to 3 paragraph of this chapter. We will read from today from the 4th paragraph of this chapter. In this chapter, My Childhood, written by APJ Abdul Kalam, as you know, this is autobiography of APJ Abdul Kalam. Today we will start the remaining portion of this chapter. Now we are going to start. Everyone will open the book and see in their books. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economics and the emotional environment, and trained in certain ways by figure of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood: Ramananda Shastri, Arvindan, and Shiv Prakashan. All these boys were from the orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Arvindan went into the business of the arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railway. During the annual Shri Sita Rama Kalyana ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord Rama from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of prophets were the bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to the Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, it was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. Let's explain these paragraphs. Every child is born with some inherited characteristics. APJ अब्दुल कलाम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि आपने जाना था APJ अब्दुल कलाम बचपन से किस तरह से बड़े हुए, किस तरह से वो भारत के राष्ट्रपति बने। अपनी पहली मजदूरी को याद करते हुए उनको याद आता है किस तरह से पहले विश्व युद्ध में इमली के बीजों की एकदम से अचानक से जो है डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई
तो इन्होंने भी इमली के बीजों को कलेक्ट करना शुरू किया और उसे पास के ही जनरल स्टोर पर जाकर बेच जाते थे, उससे कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन रियल उनकी जो मजदूरी थी वो अखबारों को डिस्ट्रीब्यूट करके ही उन्होंने अपनी पहली मजदूरी अपने जो भी इनके भाई थे, चचेरे भाई शमसुद्दीन, उनके साथ मिलकर इन्होंने अपनी पहली मजदूरी कमाई थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि बचपन से एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टर। सब बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं संसार के, अपने माता पिता से कुछ न कुछ गुण लेकर ही पैदा होते हैं। यानी माता पिता की कोई ना कोई विशेषता बच्चे में आ ही जाती है। माता पिता की, दादा दादा की, नाना नानी, किसी की भी कोई ना कोई विशेषता इनहेरिटेड एक वंशानुक्रम के अनुसार बच्चों में आती है। जीन्स कहलाते हैं इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। और कैसे इन्वायरमेंट में? स्पेसिफिक, एक विशेष सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। और ऐसा इन्वायरमेंट जिससे आप बहुत अटैच हो, लगाव हो। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और उस व्यक्ति को एक अच्छी तरीके से, जो भी अथॉरिटी होती है, जो माता पिता होते हैं, जो घर वाले होते हैं, बहुत अच्छी तरह अपने रीति रिवाजों के अनुसार, अपनी क्रियाओं के अनुसार, अपनी विशेषताओं के अनुसार ढालते हैं और पालन पोषण करके उसे बड़ा करते हैं। तो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक्स एंड द इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन अ सर्टेन वेज बाय द फिगर ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। लेकिन मुझे मेरे माता पिता से क्या मिला? मुझे मेरे माता पिता से मिला ऑनेस्टी, ईमानदारी। वो ईमानदार थे तो मेरे अंदर भी ये गुण आया ईमानदारी का, सच्चाई का। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और स्व अनुशासन, खुद का, खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अनुशासित रह के लोगों को परेशानी ना हो ऐसा कार्य करना है, वो अनुशासन वाला कार्य कहलाता है। आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस, और मुझे माता पिता से ये भी मिला, आई इनहेरिटेड विथ फेथ इन गॉडनेस, कि मुझे देवी देवताओं पर विश्वास और ट्रस्ट रखना। एंड डीप काइंडनेस, और अपने अंदर दया की भावना पैदा करनी है, लोगों को माफ़ कर देना, उदारता, लोगों की भलाई करना, काइंडनेस। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सारी खूबियाँ सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मेरे भाइयों में भी और मेरी बहनों में भी मेरे माता पिता से कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड वंशानुक्रम के रूप में ये खूबियाँ, ये विशेषताएँ मिली हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं बचपन से मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे, खास दोस्त जिसको बोलते हैं, बहुत ही करीबी यार। 3 फ्रेंड्स, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, देयर आर 3 फ्रेंड्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। All these boys were from orthodox Hindu Brahman family। और ये तीनों के तीनों दोस्त पक्के ब्राह्मण फैमिली से, पक्के पंडित थे, बिल्कुल ब्राह्मण फैमिली। As children, none of us ever felt any differences amongst ourselves। बचपन से ही हम चारों ने कभी भी अपने बीच में कोई भेदभाव, कोई धार्मिक क्लेश, धार्मिक भावना कभी आने नहीं दी, पैदा नहीं हुई। कभी ये चीज़ें कभी सोची ही नहीं, और सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं होना चाहिए कि हम भेदभाव करें या सोचें या उसके बारे में सीखें। होना ही नहीं चाहिए भेदभाव, धार्मिक भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑल ह्यूमन आर इक्वल, दैट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। हमारा संविधान भी कहता है कि हम सब लोग बराबर हैं, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यू एज यू नो द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जब भारत के लोग की बात हो रही है तो सारे लोगों की बात हो रही है। तो भेदभाव वाली बात न कभी जाननी है, और न सीखना है, और न करना है।
कह रहे बचपन से ही कभी कोई भेदभाव वाली बात हम लोगों के बीच में नहीं आई थी। बिकॉज आवर रिलीजन डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, क्योंकि हम सबके धार्मिक जो भावना थी, हम सबके अंदर जो धार्मिक अंतर था, कभी उसको हम लोग ने ऊपर आने ही नहीं दिया। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri. जबकि रामानंद शास्त्री तो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम के एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी थे, उनका बच्चा था। लेकिन वो मेरा दोस्त था रामानंद शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में वो भी पुजारी बन गए अपने पिता के स्थान पर। जब उसके पिता नहीं रहे या बूढ़े हो गए, उनके स्थान पर वो भी रामेश्वरम के टेम्पल का पुजारी बना। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से आगे वो पुजारी बन गया। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। अरविंदम काम करने लगा यातायात, जो आप ट्रांसपोर्ट का नाम सुना होगा आपने, यातायात का बिजनेस, यानी कि टूरिज्म का बिजनेस, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों को पहुंचाना, अरेंजमेंट करना, ये सारी चीज़ों का काम अरविंदम देखने लगा। फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, के जो लोग यात्री जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए, बहुत सारी धाम के लिए, जगहों के लिए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन, उसके 3 फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। और शिव प्रकाशन क्या काम करने लगा? कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। कैटरिंग यानी खाने की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करने लगा। कहाँ? साउथर्न रेलवे में। साउथर्न रेलवे में एक खाने की व्यवस्था करने लगा। ये तीनों लोग अलग अलग, एक पुजारी बन गया, एक रेलवे में कैटरिंग का काम देखने लगा, और एक ट्रांसपोर्ट का काम देखने लगा। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, और साल में एक बार वहाँ पर एक त्यौहार होता था, और उस त्यौहार का नाम था श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। सीता राम कल्याण सेरेमनी होती थी, यानी शादी होती थी सीता राम की। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारा परिवार हर साल की तरह, हर वर्ष की तरह श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी के लिए बोट का अरेंजमेंट करता था, जिसमें शेड्स होती थी, कुछ बना होता था लोगों के बैठने के लिए, प्लेटफॉर्म होता था। फॉर कैरिंग आइडल्स, ताकि हम मूर्तियों को ले जा सकें, ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल, भगवान राम की मूर्ति को मंदिर से ले जा सकें, टू द मैरिज साइट, जहाँ पर शादी होना है। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, और वो शादी कहाँ होती थी? तालाब के बीचों बीच, जो छोटा सा टापू होगा आइलैंड टाइप का, उस तालाब के बीचों बीच वहाँ पर शादी होती थी। और उसका नाम क्या था? कॉल्ड रामा तीर्था। और उस छोटे से स्थान का नाम, छोटे टापू का नाम क्या था? रामा तीर्था नाम था। विच वॉज नियर आवर हाउस, विच वॉज नियर आवर हाउस। तो जो रामा तीर्थ था, जो पूरा प्रोग्राम होता था, APJ अब्दुल कलाम के घर वाले एक बोट का अरेंजमेंट करते थे। उस बोट पे श्री राम की मूर्ति जो है उस पौंड तक जाया करती थी, और जो इनके घर के पास था। इवेंट फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। रामायण के बहुत सारे किस्से और नबियों के बहुत सारे किस्से, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जानते होंगे नबी क्या होते हैं, प्रॉफिट्स कहलाते हैं। इवेंट फ्रॉम द रामायण, रामायण के बहुत सारे किस्से, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट साहब जो बोलते हैं, मोहम्मद साहब का नाम आता है कई बार, मुस्लिम धर्म की आप बात करें। वर द बेड टाइम स्टोरी माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन अवर फैमिली। जब हम लोग फ्री होते थे, बेड टाइम यानी फुर्सत का समय होता था, कोई काम नहीं होता था, तो उस समय पे मेरी माँ, मेरी दादी माँ ये कहानियाँ हम लोग को सुनाया करती थी, श्री राम की और मोहम्मद साहब की कहानी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, कह रहे एक दिन की बात है जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल,
कहाँ पर 5th क्लास में? रामेश्वरम के जो एलिमेंट्री स्कूल था, प्राथमिक जो विद्यालय था। अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। होता ही है, बहुत सारे स्कूल में नए नए टीचर आते हैं, जाते भी हैं, बहुत सारे रिटायर हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अ न्यू टीचर केम, एक नया टीचर आता है। आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। कह रहे मैं हमेशा से सर पर टोपी पहनता था और टोपी पहनने से विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, अलग दिखाई देता था कि मैं एक मुसलमान हूँ। कोई भी व्यक्ति टोपी पहने होगा तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मुस्लिम है, ये उसकी निशानी है, शो करता है वो। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। और APJ अब्दुल कलाम कहते हैं मैं हमेशा पहली सीट पर बैठता था। आगे की जो रो थी, पहली जो लाइन थी, उस फर्स्ट रो में रामानंदा शास्त्री के जस्ट बगल में बैठता था। दोनों दोस्त अगल बगल बैठा करते थे। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड। और रामानंदा शास्त्री क्या था? वो पवित्र जो धागा, आपने ऑरेंज कलर का देखा होगा, और ये धागा वाकई में पवित्र माना जाता है। ये मंदिरों में भी मिलता है और ये दरगाहों पे भी मिलता है। तो उस धागे को वो बांधे हुए था हाथ में और या गर्दन में। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। लेकिन उस नए टीचर के अंदर ये गंदगी भरी हुई थी, उसको ये हजम नहीं हुआ, स्टमच नहीं हुआ कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ कैसे बैठा हुआ है। ये देखिए कितना भेदभाव उस टीचर के अंदर है, कितने द्वेष है, उसको ये हजम नहीं हुआ। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, और हमारी सामाजिक स्थिति के अनुसार, एज द न्यू टीचर साइड, जब उस नए टीचर ने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझसे कहा उठो और जाकर पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाओ। ये उस नए टीचर ने मुझसे बोला। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और रामानंदा शास्त्री मेरा जो दोस्त था उसको भी बहुत बुरा लगा कि कोई व्यक्ति, हम लोग हमेशा से एक साथ बैठते चले आ रहे हैं, एक नया टीचर आया और उसके अंदर ये भेदभाव की भावना थी और उसको ये हजम नहीं हुआ कि कैसे एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़के के साथ जो है कैसे बैठा हुआ है। और उसने मुझे उठाकर, APJ अब्दुल कलाम जो भारत के आने वाले समय में राष्ट्रपति बनेंगे, उस टाइम पे तो उनको पता नहीं था, वो अपनी बात बता रहे हैं कि एक टीचर ने मुझे उठाकर पीछे बैठा दिया। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। मेरा जो दोस्त था रामानंदा शास्त्री, ही लुक्ड अटरली, ऑलमोस्ट गुस्से में नाराज़ हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। द इमेज ऑफ हिम बीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो। और जब मैं उठकर लास्ट रो में जाने लगा तो मैंने उसका चेहरा देखा तो बिल्कुल रोता हुआ उसका चेहरा था कि मेरे दोस्त को किसी ने बेइज्जत कर दिया है, असम्मानीय कर दिया और मुझे उसको पीछे पहुंचा दिया है। लेफ्ट आई लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैंने अपने दोस्त का चेहरा देखा तो मुझे वो रूहाना सा, रोता हुआ सा चेहरा दिखाई दिया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the ICU. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. After school, we went home and told our respective parents about the incident. इसके बाद हम लोग जो है घर जाकर हम लोगों ने इस घटना के बारे में अपने अपने पेरेंट्स को बताया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, स्कूल ख़त्म होने के बाद हम लोग घर गए एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने सम्मानीय माता पिता को
ये सारी घटना बताई अबाउट द इंसिडेंट। इस घटना के बारे में बताया कि एक टीचर आया है और उसने मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया। रामानंद शास्त्री ने बताया। और एपीजे अब्दुल कलाम अपने घर गए, उन्होंने भी अपने पिताजी को बताया कि मैं पहली बेंच में बैठा हुआ था, टीचर आए, कुछ भी मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ शैतानी नहीं की थी, और उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली रो में, लास्ट रो में फेंक दिया, बिठा दिया। लक्ष्मणा शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मणा शास्त्री summoned the teacher, लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलवाया, आइए। समन्ड द टीचर यानी उसको नोटिस भेजा कि आपको बुलाया गया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारे सामने ही, हमारी मौजूदगी में ही, टोल द टीचर, उस टीचर से बताया दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कि तुम्हें जो है जहर नहीं घोलना है बिल्कुल भी, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस। तुम्हें बिल्कुल भी बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंटों के दिमाग में शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, तुम्हें जहर नहीं घोलना। ये जहरी तो है, हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, जो यूनिटी है, उसको तोड़ना, तोड़ने वाला बहुत जहरीला होगा ना, तो वो तोड़ देगा। वो नहीं चाहेगा कि एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ रहे। तो लक्ष्मणा शास्त्री ने कहा कि तुम्हें इन मासूम बच्चों के माइंड में, यू शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, तुम्हें समाज में भेदभाव नहीं करना, समानता नहीं फैलानी है, ये जहर नहीं घोलना है। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और धार्मिक जो भाईचारा है उसको तोड़ो नहीं। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन मासूम बच्चों के दिमाग में ये नफरत का जहर मत घोलो। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school. उन्होंने कहा कि या तो बच्चों से माफ़ी मांगो या फिर एट ए टाइम स्कूल छोड़कर चले जाओ। ऐसे टीचर की हमें आवश्यकता नहीं है जो बच्चों के माइंड में नफ़रत घोल दे, जो बच्चों को ऐसी भावना पैदा कर दे जो एक दूसरे से वो नफ़रत करने लगे। एंड द आइसलैंड, स्कूल को भी छोड़ो, इस आइसलैंड को भी छोड़ो, रामेश्वरम छोड़ के चले जाओ। ये तो फिर बच्चों से माफ़ी मांगो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म हिज यंग टीचर। तो उस टीचर के माइंड में सिर्फ पछतावा ही नहीं था, बल्कि उसने अपने बिहेवियर को भी चेंज किया और बाद में उसने कन्वे भी किया लक्ष्मणा शास्त्री को, बच्चों को भी, कि हाँ उससे गलती हुई है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ तो बहुत ही ब्रदरहुड है और उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा भेदभाव करेगा, कोई भी टीचर करेगा, माता पिता करेंगे, समाज के कोई लोग करेंगे, तो ये हमारी समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जितनी जल्दी देखिए उसको, उस टीचर को उस चीज़ का एहसास हो गया कि वो जो कर रहा है वो गलत है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस टीचर ने माफ़ी भी मांग ली अपने किए पर और कहा कि वो आगे से इन बच्चों के साथ अच्छी फीलिंग, अच्छे सेंस के साथ ही काम करेगा। दैट्स एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। द रिमेनिंग पोर्शन विल कंटिन्यू इन the next video in part 3. I hope you like the video. If you have any problem, comment in the comment box, and if you have any major problem, you can come to school to discuss with us and discuss with other teachers to other topic also. Thank you very much.